Hello guys, welcome to my channel Education World. In the last video, we have learned about the physical features of India. In this video, we'll be learning about the drainage system of India. So let's begin with it. Okay, so before starting the drainage system of India, I would like to tell you what is drainage. Drainage is any kind of well-defined channel which through which water flows. Okay, so if this is the channel through which water is flowing, so this is the drainage. Okay, now the drainage basin. What is drainage basin? Drainage basin is this area through which single river passes. Okay, this is the area in which a single river passes, so this is known as drainage basin. Okay, and what is water divide? Any kind of barrier or any kind of relief structure which divides two drainage basins is known as water divide. Okay, so let's see this. See, this is drainage basin A, this is drainage basin B. So this mountain, this water divide, this area divides this two basins, basically these two rivers, into two parts. So this is known as water divides. By the name itself, we can recognize that water divide means anything which is dividing the water into two parts. Okay, so we can see this over here also. This is the same cloud which is giving rain or water to both sides of the mountain, but this peak is dividing the surface runoff from basin A to basin B. So this is the water divide. Okay, I hope I made myself very clear to you. Now, what are the drainage systems in India? Drainage systems in India are basically divided into two major systems, that is the Himalayan River system and second is the Peninsular River system. Okay, so in this video we'll be only focusing upon the Himalayan River system. Okay, let's begin with it. Here is the Himalayan River system. This whole area covers Himalayan river system, and here there is peninsular river system. We have learnt in the last video in physical features of India that this area is the peninsular plateau area. So here the river which flows is known as peninsular rivers. Okay, is known. Himalayan rivers, it is perennial in nature. Okay, the basic feature of Himalayan river is that it is perennial in nature. And why it is perennial in nature? Because it receives water from rain as well as snow. बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में इस एरिया के रिवर को हमेशा पानी मिलता है, बिकॉज वो रेनी सीज़न में ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश ज़्यादा होता है, बिकॉज ओरोग्राफिक बैरियर उसको मिल रहा है हिमालयन माउंटेन के तौर पे. ठीक है. एंड सेकेंड, हिमालयन रीजन जो है वो स्नो कवर्ड एरिया है. सो जब समर सीज़न में स्नो मेल्ट होता है तब उसका पानी भी रिवर में मिक्स होता है. सो इसलिए ये समर, रेनी, विंटर, ये तीनों सीज़न में हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसे पेरिनियल रिवर कहते हैं. जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है, जो यहाँ के रिवर्स है, इनमें हमेशा पानी नहीं रहता है, ये समर सीज़न में ड्राई हो जाते हैं, जबकि हिमालयन रिवर्स में ऐसा नहीं होता है. ओके, second feature of Himalayan rivers are the two major Himalayan rivers are the Indus and the Brahmaputra, which originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains, making gorges. Okay, जो दो मेजर हिमालयन रिवर है, जो कि है इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा, जो माउंटेन्स को कट करते हुए प्लेन एरियाज़ में फ़्लो करती हैं, तो वो वहाँ पे डीप जॉर्जेस बनाती हैं. डीप जॉर्जेस कैसे होता है? जैसे कि ये माउंटेन एरिया है, यहाँ से जब वो फ़्लो करती हैं तो ये एरिया को
ये एरिया को लोग कट करती हुई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया जब कट होते जाता है तो ये डीप वैली टाइप स्ट्रक्चर ले लेता है, जो और डीप जब हो जाता है एंड स्टीप वैली जब बनता है तो उसे हम जॉर्जेस कहते हैं, ठीक है। They perform intensive erosional activity due to which gorges are formed. Okay, erosional activity उनके अपर कोर्सेस में ज़्यादा होता है, मतलब जब अपर कोर्सेस, मिडल कोर्सेस एंड लोअर कोर्स क्या होते हैं, जब ये माउंटेन से ऐसे रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है, ये एरिया से ऐसे फ्लो कर रही हैं, तो ये उसका अपर कोर्स होगा, ये उसका मिडल कोर्स होगा एंड ये उसका लोअर कोर्स होगा। तो यहाँ पे है ना उनका फ्लो स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, ये एरिया में उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज उनको स्लोप मिल रहा है, तो स्लोप पर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से दौड़ता है ना। तो पानी का भी वही होता है, पानी जब यहाँ इतने तेज़ी से इतने स्लोप से नीचे गिरता है तो उसके साथ में जो भी छोटे मोटे कंकड़ मिट्टी जो भी रहते हैं उसको लेते हुए अपने साथ बहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इरोजन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। मिडल कोर्स में आते आते उसका स्लोप जब थोड़ा सा कम हो जाता है तब वो यहाँ पे डिपोजिशन भी करने लगता है एंड साथ साथ में इरोड भी करता है, बट थोड़ा कम मात्रा में, इस अपर कोर्स के मुकाबले कम मात्रा में यहाँ पे इरोड करता है एंड लोअर कोर्स में आके फिर वो पूरा प्लेन एरिया में आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये बताया गया है कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। यहाँ से वो लोग वो रिवर्स बहुत ज़्यादा इरोजन करती हैं, ठीक है। In the middle and lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their floodplains. अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिडल कोर्स में जब वो डिपोजिशन और इरोजन दोनों करती है, जब यहाँ से वो यूज सिल्ट एंड सैंड लेकर आते हैं, जब ज़्यादा इरोजन यहाँ पे होता है, तो मिडल कोर्स में आके जब उनका स्लो हो जाते हैं, उनका स्पीड जो है वो कम हो जाता है, तो वो लोग अपने आसपास से डिपोजिशन करने लगती हैं, तो वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स का रूप लेते हैं। हम लैंड फॉर्म्स किसी और वीडियो लेक्चर में देखेंगे, बट बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि मियांडर्स कैसे होते हैं। मियांडर्स ऐसे दिखते हैं, जब रिवर का फ्लो ऐसा हो जाता है तब वो इसे मियांडर्स कहते हैं। ऑक्सबो लेक जब इससे कट हो जाता है, ये एरिया कट हो जाता है, वो ऑक्सबो लेक्स में आते हैं, ठीक है। एंड जो लोअर कोस्ट में है यहाँ पे वो डेल्टा रीजन फॉर्म कर देते हैं। डेल्टा रीजन हम ऐसा 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 देखते हैं ना, जहाँ पे अलग अलग जगह पे जो सिल्ट है, जो सैंड है, उसका बैरियर बनने की वजह से रिवर जो है वो अपना कोर्सेस चेंज करने लगते हैं, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स में ये चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। नाउ वील लुक एट दी rivers which flow through Himalayan region. Okay, so the first is the Indus River. Indus River rises in Tibet near Lake Mansarovar. It then flows west and enters India in the Ladakh region. अब ये देखते हैं हम, जो इंदस रिवर है वो मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत रीजन में है, तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, यहाँ ये तिब्बत है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इट देन फ्लोज टू वेस्ट एंड जो ये लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन से वो इंडिया के अंदर एंटर होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर एंटर होने के बाद जो ये गिलगित बल्टिस्तान रीजन है, यहाँ से वो पाकिस्तान में एंटर होता है। ओके, सो इसका ओरिजिनेट ये कहाँ पे हुआ है, मानसरोवर के पास, एंड इट देन एंटर्स इनटू लद्दाख, in the Ladakh region, then in this Gilgit Baltistan, from this Gilgit Baltistan region it flows into Pakistan. Okay, and some major tributaries of Indus are Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and Satluj. This is Satluj, Bias, Ravi, Chenab and Jhelum. Okay, it forms a picturesque gorge in this part. it ये ऐसा क्यों बोला गया है कि ये जॉर्जेस फॉर्म करता है, बिकॉज ये पूरा हिमालयन रीजन है। सो ये रिवर हिमालयन रीजन को इस तरह से कट करते हुए फ्लो होते हैं, सो ये जॉर्जेस फॉर्म करते हैं, ठीक है।
Several tributaries, the Jaskar, Nubra, Shyok and Hunza join it in कश्मीर रीजन. इसके जो दूसरे ट्रिब्यूटरीज है वो कश्मीर रीजन में, इस रीजन में इंदस को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. इंदस, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इंदस फ्लोज थ्रू गिलगित बल्तिस्तान एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ अटोक. इट देन एंटर्स इनटू पाकिस्तान. द सतलज, बियास, रावी, चेनाब and Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. Beyond this, Indus flows southward and eventually रीचेस टू दी अरेबियन सी. अब जब ये इंदस यहाँ से लेक मानसरोवर से वेस्टर्न रीजन में फ़्लो होकर लद्दाख में एंटर हुआ इंडिया में, एंड इंडिया में बल्तिस्तान रीजन से वो पाकिस्तान में गया. एंड इसके जो ट्रिब्यूटरीज है अलग अलग जो कि है झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज, ये जो मिठानकोट रीजन है ये पाकिस्तान में है. यहाँ पे इंदस से मीट होते हैं. यहाँ पे ये पांचों रिवर्स जो है वो इंदस से मिलते हैं एंड देन इट एंटर्स इनटू अरेबियन सी. यहाँ पे है अरेबियन सी. ठीक है. तो अरेबियन सी में जाकर मिलते हैं. ओके. सो दीज वेर द मेजर फीचर्स ऑफ इंदस रिवर. इंदस रिवर के बारे में इस वीडियो में हमको बस इतना ही जानने के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. क्या क्या जाना है हमने, उसका ओरिजिनेट वो कहाँ से हुआ है, वो कहाँ पे फ़्लो होता है, एंड उसके मेजर ट्रिब्यूटरीज, जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो बेसिकली सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, जो कि है झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज. ओके. आप अगर इसको ऐसा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में भी याद रखना चाहे तो मैप के द्वारा याद रख सकते हैं. ओके. Now we'll move to the second river system, that is Ganga river system. Ganga originates in Uttarakhand. ओके. मैं उसको अभी आपको मैप के द्वारा बताती हूँ. ये है उत्तराखंड स्टेट, इंडिया का उत्तराखंड स्टेट. एंड जो गंगा है वो यहाँ का जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से ये भागीरथी रिवर जो है, भागीरथी रिवर फ़्लो करती है. एंड यहाँ से अलकनंदा रिवर फ़्लो करती है. भागीरथी एंड अलकनंदा जो देवप्रयाग में मिलते हैं, इनका जो दे मीट एट देवप्रयाग. एंड यहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ये गंगा कहलाती है. गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है एंड यहाँ से अलकनंदा, एंड दे मीट एट देवप्रयाग एंड थ्रू दिस, and from here it is known as Ganga. Okay. See, the headwaters of the Ganga called Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. ओके. सो यहाँ से वो गंगा हो जाती है एट हरिद्वार. द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स. अब यहाँ पे हरिद्वार रीजन जो है, यहाँ से वो माउंटेन रीजन से अब वो प्लेन रीजन में आ जाती है. अब वो माउंटेन्स पे नहीं फ़्लो करती है, एक नॉर्दर्न प्लेन जो है अपने इंडिया में वहाँ पे से फ़्लो करती है. ठीक है. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra, the Gandhak and the कोसी. ठीक है. गंगा के जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना, घाघरा, गंधक, कोसी एंड और भी बहुत सारे हैं. पहले हम इन सब के बारे में देखते हैं. द रिवर यमुना rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. ओके. अब ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. हाँ, यहाँ पे ये है हरिद्वार से, हमने पहले देखा कि हरिद्वार से गंगा माउंटेन एरिया से अब प्लेन रीजन में आ गई. ठीक है. तो अब यहाँ से प्लेन रीजन में आ गई गंगा. अब जो यमुना है, यमुना यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से गंगा के पैरेलली फ़्लो करती है. ये गंगा है,
यहाँ से यमुना उसके पैरेलली फ्लो करती है एंड दे मीट एट इलाहाबाद। यहाँ पे मीट करते हैं ये लोग, यहाँ पे। इसलिए ये इलाहाबाद में जो कि प्रयागराज है उसमें इसे संगम कहा जाता है, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम। लेकिन सरस्वती अब नहीं है, गंगा जमुना का संगम कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया यमुना के बारे में। अब जो घाघरा, गंधक एंड कोसी है, घाघरा, गंधक एंड कोसी, ये जो रीजन, ये रिवर्स है, घाघरा, गंधक एंड कोसी, ये तीनों रिवर्स नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ये तीनों रिवर्स एक्चुअली उत्तर प्रदेश एंड बिहार, मेजरली बिहार में फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, बिकॉज ये इनका कोर्स चेंज करते रहते हैं। कोसी रिवर है जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा अपना कोर्स चेंज करती है, जिसकी वजह से बिहार में फ्लड्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट वही है, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय एंड दिस ब्रिंग्स फ्लड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, the peninsular tributaries are the चंबल, द बेतवा एंड दी सोन। अब जो ये हम लोग ने जो यमुना, गंगा, घाघरा, गंधक एंड कोसी का देखे, ये हिमालयन रीजन से ही निकले हुए हैं। जो पेनिनसुलर रीजन से निकले हुए रिवर्स हैं जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, वो हैं चंबल, ये चंबल, बेतवा एंड सोन। यहाँ पे ये है सोन, बेतवा एंड चंबल। ये तीनों रिवर्स जो है वो पेनिनसुलर रीजन से निकले हुए रिवर्स हैं, सेमी एरिड एरिया से, और वो गंगा से जाके मिलते हैं। ठीक है, enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka barrage in West Bengal. This is the northernmost part of the Ganga Delta. It here forms distributary at Bhagirathi, Hooghly and flows southward to the Bangladesh. It here joins Brahmaputra. अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये गंगा के लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सारे रिवर्स मिला के गंगा वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब अपने आप को दो रिवर्स में बांट देती है, वो है भागीरथी एंड हुगली। ओके, एंड देन इट फ्लोज इनटू बांग्लादेश में यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर भी आता है, आसाम के थ्रू, आसाम रीजन से वो आके बांग्लादेश में गंगा रिवर से मिलता है, जो कि बाद में फिर मेघना कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा आके जब बांग्लादेश में मिलते हैं तो उसे हम मेघना रिवर कहते हैं, एंड देन इट फॉर्म्स डेल्टा ओवर हियर एंड एंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, it then flows into Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as सुंदरबन डेल्टा। ये रीजन को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अम्बाला एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा। अब जब हमने वीडियो स्टार्ट किए थे तब हमने देखे थे कि वाटर डिवाइड क्या होता है। सो इंदस एंड गंगा के बीच में इंदस जो कि ऊपर कश्मीर रीजन में फ़्लो करती है, इंदस और गंगा के बीच में यहाँ पर अम्बाला एक रीजन है जो कि वाटर डिवाइड का काम का, एक सिटी है जो कि वाटर डिवाइड का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे in this region। ठीक है, now we'll move on to the third river system, that is Brahmaputra river system. It rises in the Tibet east of मानसरोवर लेक। अब जहाँ से इंदस फ्लो करती है, इंदस ओरिजिनेट करती है, लगभग उसी एरिया के आसपास ब्रह्मपुत्र रिवर भी फ्लो करती ओरिजिनेट करती है। ठीक है, सी यहाँ से ये तिब्बत रीजन में से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट करती है आंगसी ग्लेशियर से,
तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो रिवर कहते हैं। इंडिया में आके इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बट तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ से ये फ्लो करती है एंड यहाँ पे नामचा बरवा जो है इससे ये यू टर्न ले लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ओके, now we'll look at this. It is slightly longer than Indus and most of it lies outside India. अभी हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ये तिब्बत में ओरिजिनेट करती है एंड इतना पार्ट तो ये इसका तिब्बत एंड चाइना में ही फ्लो करता है। सो मोस्ट ऑफ इट लाइज आउटसाइड इंडिया। ओके, देन इट एंटर्स इनटू इंडिया। सो इतना ही पार्ट इसका इंडिया में फ्लो करता है। ठीक है, it flows eastward parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters India into in Arunachal Pradesh through a gorge. यही मैंने अभी आपको बताया कि नामचा बरवा से यू टर्न लेकर यहाँ से गॉर्ज फॉर्म करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, here it is called as Dihang and it is joined by Dibang, the Lohit and many other tributaries to form Brahmaputra in Assam. अब यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर है एंड लोहित वगैरह, ये सारे रिवर्स इसे ज्वाइन करते हैं एंड देन इट बिकम्स ब्रह्मपुत्र एंड एंटर्स इनटू असम। ओके, now the in Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. Therefore, it has braided channels. ओके, अब यहाँ पे जो है ना ये पूरा स्नो एरिया है कि हम लोग ने देखा था कि हिमालयास है यहाँ पे। ठीक है, तो हिमालयास होने की वजह से ये कोल्ड एरिया है, स्नो ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इरोजन ये नहीं कर पाती है रिवर, बिकॉज ये पैरेलली एक तो फ्लो करती है। पैरेलली फ्लो करने की वजह से ये ज़्यादा इरोजन नहीं कर पाती है। ओके, एंड जब ये इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पे ये माउंटेन्स के बीच में से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे उसका इरोजन ज़्यादा होता है और इरोजन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सिल्ट डिपोजिशन भी ज़्यादा होता है इनका, और सिल्ट डिपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से ब्रेडेड चैनल्स मीन्स कैसे, जैसे हम लोग ने देखा होगा कि हम लोग जैसा बाल बांधते हैं तो उसका शेप कैसा ऐसा 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 रहता है ना, वैसा चैनल्स फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the riverbed to rise. The river also shifts its channel frequently. Due to this रीज़न कि यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिवर बेड जो है, मतलब रिवर नीचे जो सैंड का हिस्सा रहता है वो इंक्रीज़ होते रहता है, तो जो पानी है, जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है, इसलिए असम में फ्लड बहुत ज़्यादा आता है। बाकी नॉर्दर्न रिवर्स में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है बिकॉज ये डायरेक्टली यहाँ के जो हिमालय है उसको कट करते हुए और माउंटेन्स को कट करते हुए यहाँ पे फ्लो होती है, एंड इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज है वो भी अपने साथ लेकर आते हैं सिल्ट वगैरह। सो यहाँ पे रिवर बेड इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है, एंड ड्यू टू दिस रीज़न असम इज़ प्रोन टू फ्लड। ओके, so that's it for the Himalayan rivers. So here we have come to an end to this video. Hope you guys enjoyed it. If you like the video, please like, share and subscribe it. Catch you guys in the next video. Till then, stay tuned and stay happy.